हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फादर नेशन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस्लाम नेपाल, क्या हाल चाल है। तभी हम एक ट्रैवल वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ बंदीपुर ट्रैवल वीडियो 4K। बंदीपुर यार अभी तक पहले कभी नाम नहीं सुना नेपाल में, कौन सी जगह है बंदीपुर। तो आज हम रिएक्शन देने वाले नेपाल के शहर सिटी बंदीपुर के बारे में, मैजिक ऑफ बंदीपुर। ये वीडियो को देखते कि कैसे वीडियो है, ट्रैवल कैसा है और कैसे शॉट है, कि सिनेमैटिक शॉट है कि नहीं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन। Wow. You see this cute little village? It's Bandipur. This story is about a story that does not have any story. Let me give you a little context of what is going on. Let's record a travel video. Traveling can be exhausting. You're on your feet whole day exploring places. You might be jet lagged and you have this pressure that you have to be outside because of course you didn't travel this far to stay in your hotel room and do nothing. Especially as a content creator, you have this constant urge of filming everything and to take every photo you possibly can so that the story you put out makes more sense. So after spending almost a month in Nepal, from the hustle and bustle of Kathmandu to the toughest 11-day hike we have ever done, from all the crazy local bus rides to the early morning hikes, we were sort of exhausted. We were looking for some place to just relax, some place to basically chill and do nothing. And guess what we found? Yes, Bandipur. Bandipur. This is amazing. It's a small village located between Pokhara and Kathmandu. And as soon as we entered the village, we got this vibe that we went back in the early 90s. Oh no! ये old सीन का है, जिस तरह पुराने शहर हो गए, पुराने टाइम 90s 80s के टाइम का। This is the center of the village where no cars are allowed, and because of this place is just so peaceful. ये अच्छी चीज़ है कि All the गाड़ी hotels and लगाओ, guest कार houses reminded us the building from the early 90s. And there's plenty of options to eat some really cool cafes. You can find kids playing on the streets, which you don't really get to see these days. The lifestyle is super laid back. It felt like we got our perfect spot to relax. We were just filming everything, whatever was going on around us, without thinking about any story to tell. Interesting. Just by taking a couple days off from our hectic schedule, we felt great. We are often told about working hard, working every day, making each second count, but no one talks about slowing it down, making time for yourself, and just relax for a bit. I feel that the power of taking time for ourselves is hugely underestimated. It not only resets us mentally, but also redefines our focus, makes us more productive, gives us a better work-life balance. अच्छा, इस नाम से ऐसा लग रहा था बंदीपुर, ऐसा लग रहा था कि कोई शहर का नाम है, बट ये एक छोटा सा विलेज था जिसमें कार अलाउज नहीं थी। 90s एरियाज लग रहा था, जैसे कि आप
विलेज के जैसे एंटर होते हो विलेज के मेन जो रोड है या जो सड़क है या मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे कार अलाउ नहीं है पूरे विलेज के साइड पे। अब बात ये है कि वो जगह इतनी प्यारी है, 90s के एरियाज़ का लग रहा है, सब कुछ चल रहा है, लोग हंसी खुशी खेल रहे, कूद रहे, बच्चे खेल रहे, लोग दुकानें चला रहे, लोग आ रहे जा रहे उस सड़क से। बट क्या है कि वहाँ पे कार चलाओ नहीं है, उसकी वजह ये कार चलाऊंगी तो उसकी वो खूबसूरती बाहर नहीं आएगी, लोगों को वो खूबसूरती नहीं दिख पाएगी, क्योंकि कचरा फेंकेंगे लोग, फिर कचरा आएगा, फिर गाड़ी होगी, तो बहुत सारी जगह बंद हो जाएगी। ऐसा होता है कि गाड़ी आ जाती है तो फिर वो जगह की वो चीज़ की खूबसूरती ही गायब हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जगह की खूबसूरती गायब होगी तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। ये एक बहुत ही खूबसूरत विलेज था, गांव था। अब इसकी मेन बात करें तो ये 90s 80s और 90s के टाइम के जो जैसे घर बनते थे, जैसे पुरानी 80s 90s की भी हो सकते हैं, इससे पहले के भी 100 साल पहले जो भी जिस तरह घर बनते थे, जिस तरह वो गलियां बनती थी, बिल्कुल उसी एंट्रेंस पे बनाया, उसी तरह के तर्ज पे बनाया हुआ है कि चीज़ बिल्कुल वैसे ही लगे। बात करूँ तो पाकिस्तान में 2 जगह मैंने जहाँ पे नोट की, एक कराची में एक इस तरह एक गली है, वो सिटी में एक गली है, और एक गली स्ट्रीट है, लकड़ी से बनाए जाते घर। अगर आजकल भी अगर पहाड़ी इलाकों में देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर लकड़ी से घर बनाए जाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान की एक वीडियो देखी थी, जो पाकिस्तान का नॉर्थन एरिया से, वहाँ पे एक मस्जिद को पूरी लकड़ी से बनाया था, और उन्होंने बोला कि ये लकड़ी जो सालों साल चलेगी, ख़राब नहीं होगी। जो प्योर लकड़ी से पूरा मस्जिद बना था, कोई इसमें कोई दीवार वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं थी, प्योर लकड़ी। तो बहुत सारी जो पुराने घर होते थे उसमें बहुत ज़्यादा लकड़ी यूज़ होती थी। मैंने अपने बचपन में बहुत सारे ऐसे घर देखे हमारे गांव में, जब हम गांव में रहते थे तो हमारे अपने गांव में बहुत सारे ऐसे घर देखे लोगों के जिसमें बहुत ज़्यादा लकड़ी यूज़ होती थी, छतें नहीं होती थी तो छतों पे लकड़ी डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल के रखते थे, तो लकड़ी यूज़ होती थी। अब आजकल लकड़ी यूज़ नहीं होती थी, उसकी जगह बहुत सारी और चीज़ें आ गई जो यूज़ होती है। बट अगर जब तक आपके घर में लकड़ी यूज़ होती थी तो आपके घर की खूबसूरती अलग हो जाती थी। 90s 80s 90s के टाइम या उससे पहले 100 साल या 2 साल पुरानी जो घर है, जो गली हैं जिसमें लकड़ी बहुत यूज़ हुई है, घर की बात करें ज़्यादातर, तो बहुत खूबसूरती दिखाई देती है। अगर आजकल की बात करें तो आजकल इतनी चीज़ें यूज़ नहीं होती, हम यूज़ करना चाहते भी हम यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि यार वो रिवाज, वो जो टाइम होता है, रिवाज बोलते हैं, क्योंकि वो फैशन, मतलब रिवाज मीन फैशन, वो फैशन अब नहीं है। जिस टाइम पे उसके फैशन थी तो बहुत उरूज पे था, उस टाइम पे बहुत ऊपर लेवल पे था, बट अगर उस टाइम पे अब वो यूज़ नहीं करते। बट अगर पुराने उस चीज़ को देखा जाता है, उस पुरानी इस तरह लकड़ी को या पुराने घर या पुराने मोहल्ला गली को देखा जाए, गाँव को देखा जाए, तो फिर लोग उसमें जाके वीडियोज़ बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, उसकी पूरी एक जाँच करते कि कब से बनाए, क्यों बनाए और किसने बनाया है, पूरी डिटेल लेते, क्योंकि वो खूबसूरत दिखता है, सबसे अलग दिखता है, आजकल के जिस तरह नहीं दिखता, सबसे अलग दिखता है, खूबसूरती होती है, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग आगे की सोचते थे। खूबसूरत जगह है। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मेरा व्लॉग चैनल भी है, एंड इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको चेक इट आउट कर सकते हो।